Hello everyone, I hope you all doing good. Let's begin our second part of lipid metabolism, in which we will gonna discuss about the cholesterol metabolism. Now, what does mean by the cholesterol metabolism? It is your second part of lipid, right? So what is the definition? So first of all, you must be know its definition, where it has been played a well role in our body. So as we can see that it is the relationship between blood and tissue. If you have seen the atherosclerosis, if you have heard about this disease, this is the just because of the cholesterol deposition in your veins. ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके ब्लड में ना, आपकी वेसल्स में ये डेपोजिशन की फॉर्म में प्रेजेंट होने लग जाते हैं एज अर्लियर एज with the definition. It is clear that your lipid molecules are insoluble in water. So 70% of your body contains the water. That's why the cholesterol molecule doesn't dissolve in the water. So with the due to the insolubility in water, the lipid molecules are going to be deposit in your blood, in your veins, in your tissues, which leads to disease, atherosclerotic vascular disease. क्लियर यहाँ तक? तो कोलेस्ट्रॉल वो चीज़ है जो बेसिकली इसका फंक्शन जो है ये स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है. हाउ इट डज वर्क एज अ स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट? बिकॉज ऑन द सेल मेम्ब्रेन आपके बाइल साल्स पड़े हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, दीज ऑल आर कलेक्टिवली in stable state. So cholesterol is providing the stabilization to this component. Clear its functioning? Move to our next slide, which is yes, biosynthesis of cholesterol. Like the other biomolecules, it is also formed in our human tissues, liver, intestine, adrenal cortex, and reproductive tissues, including ovaries, testes, and placenta. This is the largest contributions of the body cholesterol pool. These are the places where your cholesterol has been found, and out of these all, the liver plays a central role in the regulation of cholesterol balance. Okay, like as I mentioned, that the cholesterol has the various functions to maintain the stability on your cell membrane. It also helps to transport and helps to maintain the biosynthetic and regulatory mechanisms, राइट. सो एक तो ये चीज़ हो गई कि ये एक मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करती है ये सारी चीज़ें. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, इट जो बायोसिंथेसिस है, इसकी जो सिंथेसिस है कोलेस्ट्रॉल की, वो साइटोप्लाज्म में होती है, राइट, जिसमें ये कन्वर्टेड कर देती है जो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्ट्स हैं उसे बाइल एसिड्स में एंड साल्ट्स में, एंड सिक्रेटेड करती है बाइल. जैसे कि सबको पता है कि आपका फूड डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन में उसकी चॉपिंग होती है. जो फूड है आपका, हाफ ऑफ द पार्ट इज डाइजेस्टेड बाय द बाइल एंजाइम्स, राइट, जो आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं. रेस्ट ऑफ इट मूव्स टू योर इंटेस्टाइन, जहाँ पे आपकी प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होती है, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, जो सेग्रीगेशंस ऑफ पार्टिकल्स बायोमोलिक्यूल्स की होती है. So it helps to reabsorbed and reused by the intrahepatic circulation. यहाँ तक clear? This is the major role of the cholesterol after the conversion of its in the bile acids. Move to our next slide. Here is, you can see the structure of the cholesterol. This is the steroid nucleus. The two benzene rings are joined, three benzene rings are joined to each other with the another molecule is your pentavalent. On your benzene ring, on first carbon, there is a hydroxyl group. Here is the methyl group. Here you can see the long chain of the fatty acid has been attached with this molecule, and which makes it complex, and it which also makes the insoluble character, वो इसका करेक्टर मेंटेन रखती है. अब बट आफ्टर द कन्वर्जन इनटू द बाइल एसिड्स ये बहुत सारे जो फंक्शंस है बॉडी के कंट्रोल करता है, राइट. सो कोलेस्ट्रॉल के बाद आपका आ जाता है मेटाबॉलिक पाथवे. अभी कोलेस्ट्रॉल तो बन गया, उसकी ब्रेकडाउन है जो, ठीक है, वो जो बनता कैसे, वो सारा हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि एसिटाइल कोए हमारा प्रोड्यूस हो गया था ऑक्सैलो एसिटेट एंड बीटा ऑक्सीडेशन की वजह कॉम्बिनेशन से, तो वो HMG को ए में कन्वर्ट हो गया. नाउ अनदर योर एंजाइम विल कम, रिडक्टेस, ठीक है. तो उसने कौन सा प्रोडक्ट बना दिया, मेवालोनेट. मेवालोनेट आगे जाके प्री सेक्युलिन पायरोफॉस्फेट बनाएगा सेक्युलिन सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, राइट.
जो कोलेस्ट्रॉल है उसके हमने देखा कि मेजर 5 स्टेप्स थे जो अपने डायग्राम में देख चुके हो। एंड उसके बाद आपका आ जाता है, ये सारे आप स्टेप्स एक बार रीड कर लेना जो हमने पीछे पाथवे में किए हैं। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है कि जो मूवमेंट ऑफ एसिटिल CoA की है वो माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोप्लाज्म कैसे होती है, कैसे वो लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। हियर यू कैन सी व्हेन द योर TCA साइकिल और योर citric acid cycle has been completed, the oxaloacetate is the one of the molecule which has been formed, right? ये कहाँ से बना था आपका, पायरोवेट। आपको सारे पाथवेज याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको पता चल सके हाउ दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, how it is helping to make the one to another products, right? Here you can see it converted to citrate, and citrate in the presence of this has been gone into the outer membrane. Here is your plasma membrane, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद फिर से मैलेट बनाया, फिर से पायरोवेट बनाया, एंड द अगेन एसिटाइल CoA molecule has been generated here. Now this acetyl CoA molecule, it's attached with the another molecule, and your cholesterol biosynthesis has been processed. उसके बाद आ जाता है बाइल एसिड सिंथेसिस। अभी हमने बाइल एसिड्स पता रीड किए कि कैसी उसकी फॉर्मेशन होती है। तो बाइल एसिड्स का जो रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, ठीक है, ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर पाता है ना वाटर, इट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड। Rather intact steroid ring, it is eliminated from the body. Now conversion to, हमने जैसे कि रीड किया कि insolubility कोलेस्ट्रॉल की होने की वजह से वो मेम्ब्रेन में डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, बाइल एसिड्स में, ठीक है, जो कि डायरेक्टली एक्सक्रीट कहाँ होती हैं, आपके एक्सक्रीटेड इन फीसिस, ठीक है। उसके बाद जो सिक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो बाइल में जाती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाता है इंटेस्टाइन में फॉर एलिमिनेशन के लिए चला जाता है, क्योंकि एब्जॉर्ब तो होता नहीं है वहां पे, तो ये डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाता है फीसिस के थ्रू। उसके बाद आ गया कि जो बाइल साल्ट्स हैं उसका जो मेन फंक्शन है ना वो इमल्सिफाई करना है, जैसे कि हमने अर्लियर डिस्कस किया हुआ है कि जो द रोल ऑफ द बाइल साल्ट्स, रोल ऑफ द बाइल एसिड्स, हाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर हेल्प टू न्यूट्रलाइज द अनदर मॉलिक्यूल्स, अनदर बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है वो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल्स में पैक होती है, उसके बाद ये माइसिल्स बनाती है जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन बनाती है, ठीक है। आगे जाके ये डिसॉल्व हो जाती है एंड अल्टीमेटली समवेयर इट लिंक्ड विद सम पाथवेज एंड गिव द एनर्जी टू योर बॉडी। यहाँ तक क्लियर। जो इसका एंड प्रोडक्ट है बाइल एसिड का, ये सिंथेसाइज लिवर में ही हो रहा है, ये सब कुछ लिवर में ही चल रहा है, ठीक है। जो बाइल एसिड्स हैं वो 24 कार्बन्स का एक लॉन्ग चेन है जिसपे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, एक साइड चेन होती है जो कि टर्मिनेट करती है कार्बोक्सिल ग्रुप को, ठीक है। हियर यू कैन सी दिस इज द cholesterol and it is break down into these compounds, cholic acid, cholesterol is cholic acid, right? Move to our next slide. How the regulation of the fatty acid metabolism has been done. अभी क्या है कि जो आपके जो फैटी एसिड्स हैं ये दो मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म होता है। जो शॉर्ट टर्म है इसमें क्या है कि आपके जो सबस्ट्रेट हैं एलोस्टेरिक इफेक्टर शो करते हैं, ठीक है, एंजाइम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अभी जैसे कि ACC है, एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप्स को फॉलो करता है फैटी एसिड सिंथेसिस में, ठीक है। जैसे कि ये सिट्रेट से एक्टिवेट होगा एंड ये रोकेगा किसे, इनहिबिट कौन चीज इसे कर सकती है, पाल्मिटॉइल CoA इसे इनहिबिट करेगा। एंड ऐसी बहुत सारी फैटी एसाइल CoA लॉन्ग चेन्स को सेम प्रोसीड करवाएंगे कि रेट लिमिटिंग स्टेप से चलेगा, ठीक है। इस जो इसकी एक्टिविटी को इफेक्ट करे, जो एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को चीज इफेक्ट कर रही है, उस प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स आएंगे जो कि PKA की स्टिमुलेट, जो ग्लूकागोन आपका है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, जो कि इंक्रीज कर देगा प्रोडक्टिविटी PKA की, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा कि डिक्रीज्ड एक्टिविटी, सभी एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा कि जो इंसुलिन है वो लीड्स करेगा PKA इंडिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इंसुलिन विल वो उसे इग्नाइट करेगा, इग्निशन देगा, ताकि आपका जो PKA है वो इंडिपेंडेंटली फॉस्फोराइलेशन कर सके, कहाँ पे, एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज की साइट्स पे, एंड ग्लूकागोन को सुप्रेस करने की कोशिश करेगा जिससे आपका ACC एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी,
क्लियर? एक आपका सुप्रेसर हार्मोन है, एक आपका जो उसे पुश करने वाला हार्मोन है। तो लॉन्ग टर्म, दूसरा आ गया हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन क्या होता है कि सिंथेसिस होती है, उसके बाद टर्नओवर, ठीक है, आगे किसी चीज में कन्वर्ट हो जाती है। ये हाई हो सकती है, लो एल्डिहाइड, लो हो सकती है। जो एल्डिहाइड डाइट डिक्रीज और इंक्रीज एसीसी सिंथेसिस उस पर डिपेंड करती है। मतलब एक सिंपल वे में क्या है, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन का क्या मतलब है कि कोई चीज एक तरह से एक फ्लो में चल रही है, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया एंड इट गोज टू दी अनदर पाथवे और साइकिल, जिससे क्या होगा, अगेन आपकी डाइट पे डिपेंडेंट हो जाएगा कि कौन सा पाथवे रन करना है, राइट? सो मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज योर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलेशन। जैसे हमने पीछे बात किया ना कि कौन सी चीजों से कार्बोक्सी, जो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेस है वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कैसे आता है। जैसे कि हियर यू कैन सी एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेस है, ये इनएक्टिव डाइमर है। अभी सिट्रेट आया, उसने क्या किया, ये लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड थी इसे प्रेस कर रही है, ये इग्नाइट कर रहा है, तो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेस एक्टिव पॉलीमर बन गया, जिसने क्या क्या चीजें बना दी, एसिटाइल कोए इनटू मैलोनिल कोए, and here is the production of these ATP, and ATP converted to inorganic phosphates. Now as we earlier discussed that insulin a product जो well fed state में काम करता है, ठीक है, आपने अच्छे से खाना खाया, आपका बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया, तो इंसुलिन इज वर्किंग इन दैट स्टेट, राइट? ये स्टिमुलेट करेगा एसीसी को एंड एफएएस सिंथेसिस करवाता जाएगा। जब आपको भूख लगी है, व्हेन यू आर स्टार्विंग, इन द स्टार्विंग कंडीशंस, व्हेन यू आर नॉट टेकिंग द फूड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, तो इसकी सिंथेसिस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो ये एसीसी की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो एडिपो टिश्यू में क्या है कि लिपोप्रोटीन्स लाइपेस नाम का एक एंजाइम है जो कि इंसुलिन को इंक्रीज कर देगा एंड आपकी भूख को कम कर देगा। इंसुलिन की प्रोडक्शन जैसी बॉडी में इंक्रीज हुई विद द हेल्प ऑफ द लिपोप्रोटीन लाइपेस एंजाइम, आपका स्टार्वेशन डिक्रीज होता गया। तो ये इफेक्ट ऑफ इंसुलिन एंड स्टार्वेशन का जो लिपोप्रोटीन लाइपेस का है कनेक्शन है इन द हार्ट, ये इनवर्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू में काम करती है, ठीक है। स्टार्वेशन कंडीशन में क्या होगा कि इंक्रीज इन द कार्डियक एंजाइम्स हो जाएंगी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की एंड डिक्रीज हो जाएंगी इन दी फैटी एसिड सिंथेसिस में, ठीक है, ये सारी एंजाइम्स। तो ये चीजें डिस्कस करने वाली क्यों थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द डिप्रेसिव हार्मोन्स, व्हाट आर द सप्रेसर हार्मोन्स, हाउ डज द इंसुलिन वर्क, हाउ डज द एसीसी जो उसका बायोमोलिक्यूल है, हाउ इट गेट इफेक्टेड in well-fed state and in the starving state. So यहाँ से बहुत सारे questions बनते हैं. So this part is very important. You must be if you have a questions, please mention in the comment section so that I answer your questions and make your give a solutions to you guys. Okay. Move to next. That is your adipose tissue, as I earlier discussed, is the same. ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन है, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन हुई, ये चीज हो गई। ओके, जैसे कि आपका फैटी एसाइल को ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाउ डज इट इफ कन्वर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम इज इनोल को ए। इनोल को के बाद ये हाइड्रेट एंजाइम यहाँ पे आया, तो ये 3 हाइड्रोक्सी असाइल को ए में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद कीटोसाइल, यहाँ पे आपकी फैटीसाइल को ए एंड एसिटाइल को ए, ये आपका बीटा ऑक्सीडेशन का पार्ट, इफ यू रिमेंबर, तो वहां सारी चीजें बनी थी, ठीक है। ये कीटोजेनेसिस अनदर जो पाथवे है कि आपका अभी बॉडी में एसिटाइल को ए बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि टीसीए साइकिल की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत सारा ऑक्सैलो एसीटेट सिट्रेट है, ये सारी ठीक है कन्वर्जन हो रही है, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है एक सिंपल वे में। सो जिससे कीटोन बॉडीज भी प्रेजेंट फॉर्मेशन होगी, जिससे कीटोन सिंथेसिस होगी, ठीक है। अभी ये कीटोन बॉडीज हैं, ये एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट एंड एसीटोन, इसकी फॉर्मेशन करेंगी एंड एसिटिल को ए एसिटोएसिटिल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस एसिटिल को ए में, which further converted to beta hydroxy beta methyl glutaril को ए, जिसे हम HMG को ए भी बोल रहे हैं, एंड यही रिस्पॉन्सिबल है ऑल्सो इन द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, आपके कीटोजेनेसिस को करेंगी, विच इज द अनदर बायोमोलिक्यूल विच हेल्प्स टू प्रोवाइड द एनर्जी टू योर बॉडी
इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो कीटोन बॉडीज एंड रिएक्शंस में क्या होता है, हियर यू कैन सी कि आपका HMG CoA है, एसिटिल CoA मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर गया तो एसिटो एसिटेट लाइएस एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटो एसिटेट मॉलिक्यूल बना जिसने एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट प्रोडक्ट्स बना दिए इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स। अभी कीटोन बॉडीज जो सिंथेसिस होती है ये एसिटिल CoA यहाँ पे स्प्लिट होगा, जैसे कि हमने पीछे देखा ना, प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा पाथवे में ये स्प्लिट हो गया HMG CoA में, तो इसने एसिटो एसिटेट दे दिया जो कि 4 कार्बन कीटोन बॉडी बना रहा है। ये समवट अनस्टेबल केमिकल होता है, तो जब तक कोई स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, स्टेबल जो एंड प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होता, तब तक ये प्रोसेसेस चलती रहती हैं। तो बेसिकली जो कीटोन बॉडीज है ना ये कन्वर्ट हो जाती है एसिटिल CoA मॉलिक्यूल, जैसे कि सबको पता है कि एसिटिल CoA मॉलिक्यूल पूरे लिपिड प्रोफाइल में हमने यही डिस्कस किया कि ये बीटा ऑक्सीडेशन से मॉलिक्यूल जनरेट होता है, तो उसके बाद ये सो मेनी पाथवेज में जाता है, एंटर होता है एंड अल्टीमेटली प्रोवाइड्स द एनर्जी इन द ह्यूज अमाउंट टू द बॉडी, राइट। ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा एंड आपके वो जब आपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखा तो समवेयर इन द कैटाबॉलिज्म पाथवे एनाबॉलिज्म में, ठीक है, ये हाउ इट वर्क्स है, ठीक है। तो ये हमने दोनों चीजें देखी कि ये हेल्प कैसे करते हैं, हाउ दे ऑल पाथवेज आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, जिससे क्या होता है कि एटीपी की सिंथेसिस हो गई, सिट्रिक एसिड साइकिल में एसिटिल CoA चला गया। जिन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है, सम डायबिटिक पेशेंट्स भी उसमें आ जाते हैं, तो वो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करते रहते हैं एंड दे आर ऑफन डिटेक्टेड द स्मेल ऑफ एसीटोन ऑन देयर ब्रीथ, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहता है। तो एसीटोन क्या है, वैसे एसीटोन इज द बेसिक जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसमें कोई खास रोल नहीं है, इट इज नॉट रेडली इमीडिएटली ये कन्वर्ट नहीं हो जाता एसिटिल CoA में। तो सेल्स हैं यहाँ पे जो कि एसिटो एसिटेट बनाते हैं इन to the beta hydroxy butyrate. Beta hydroxy is butyrate is another आप बोल सकते हो कि एनर्जी देने वाला ही मॉलिक्यूल है, बट जो टेक्निकली केटोन बॉडी में से नहीं आ जाता, ठीक है, बट इट समवेयर इट इज द पार्ट ऑफ द योर कीटोन बॉडीज। सो ये एसिटो एसिटेट हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट हो गया, ये एक तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, ठीक है, जो प्रोवाइड कर देते हैं इंपॉर्टेंट एनर्जी फॉर द ब्रेन व्हेन ग्लूकोज इज लिमिटेड। ये एक स्पेशल कंडीशन में कन्वर्जन होती है, राइट। सो यहाँ तक हमारा सारे पाथवेज इंक्लूडिंग द कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है, जो हमने बीटा ऑक्सीडेशन किया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, फिर हमने ये कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस देखा, फिर हमने कीटोजेनेसिस देखा, तो ये सारी चीज़ें थी लिपिड मेटाबॉलिज्म का पार्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी आई विल क्लियर द क्वेरीज फ्रॉम यू। सो इसी के साथ हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म पार्ट खत्म होता है। वी विल continue our biochemistry part in the next lecture, right? So please thanks for watching and please kindly follow our channel Only Biology on the YouTube, as well as we are on the Instagram with the ID name is biochem1991. Thank you so much guys.